अगला क्वेश्चन. Explain the duties, rights and duties of the coastal state over continental shelf as well as the EEZ and the high seas as defined in the UN clause. So the rights and duties of the coastal state are first continental shelf, right? Yes. So what does it mean? It means this bed soil in the submarine area beyond the territorial area, beyond the territorial sea, which is a natural prolongation of the land territory to the outer edge of the continental margin or 200 nautical miles. ठीक है, where the margin doesn't extend so far. So either it will be this or it will be this in this case. Second case is especially when it doesn't extend so far. So now you have green tea with ashwagandha. So the rights of coastal state in the continental shelf are sovereign rights. So in the continental shelf you may explore, you may exploit the natural resources at the seabed as well as at the soil, subsoil. For example, these. You may also mark polymetallic nodules. So you have exclusive. So first you have a sovereign right, then you have an exclusive right. You may lay down pipelines subject to the consent. Okay. Exclusive right is to authorize and regulate the drilling, construction, and scientific research on the shelf. DCS. Okay. So you call it DSC. DSC. Okay. DSC could be a college. Okay. So you may also lay pipelines. DPS. Okay. Construction. Hmm. ठीक है. Pipelines भी हो सकता है, तो you may call it DPS. फिर है ड्यूटीज़ क्या हैं. Not to infringe the freedom of navigation of the other rights. Okay. No navigation, no other rights of other states in the water column above, because your right extends to the subsoil, not the water column of the shelf. Now the obligation to share the revenue from the exploitation with whom? With the ISA. So you have to obligation to share revenue with the ISA for beyond 200 nautical miles, like India has in the Bay of Bengal from sixth year of production. Oh, ये नहीं पता था यार. Sixth year of production से होगा. Cool. So 8 minus 2 is equal to 6. So you have 6 years. Cool. And then you protect and preserve your environment. So you cannot interfere with the rights of others. You have to share your revenue with the ISA if it is beyond 200 nautical mile and it is beyond 6 years. From the 6 years basically, after beyond 5 years. And the environment rights and other states: freedom to navigate, overfly, lay submarine cables and pipelines on the shelf with the consent for routine fixing. Okay. Now the rights at the EEZ. EEZ is this much, from the baseline. Then you have special rights over resources, but water remains international in many aspects. Okay. Then rights of coastal states. The first is sovereign rights. Like we had sovereign rights over the subsoil, seabed, वो सब. यहाँ पे एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व और मैनेज हुए आपके नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, जिसमें वाटर सब और ये. तो आप ये वाला याद रखना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में नहीं था. इट वॉज नॉट इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ. देन यू हैव jurisdiction over the artificial island, the installation, the structures. Then you have scientific research and the environment. ये कॉमन ही है. ओके. Common in sea shelf. Then you have right to set the catch limits and regulate fishing. Fishing catch limits. Okay. What are the duties of the coastal state in the EEZ? The duty is to ensure optimum utilization. No wastage basically.
है ना, एंड गिव अदर स्टेट्स द राइट टू सरप्लस. ओ वाओ, एक्सेस टू दी सरप्लस भी देना है, गुड. रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्लाइट सबमरीन केबल, है ना ये सब. फिर कोऑपरेट रीजनली एंड इंटरनेशनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. So you have to cooperate for the conservation of resources. So you must optimally utilize the resources. You must also conserve the resources, and you must respect the freedom of the other nations. Okay. The rights of other states is to freedom of navigation, overflight जो हमें respect करनी है, cable pipeline जो subject to environmental regulation, conduct research with the consent. Okay. तो केबल हो गई, रिसर्च हो गई, और नेविगेशन वगैरह हो गया. हाई सीज में क्या है, 86 और 120 से लेके 86. 86 से 120 है. So these are all the parts that are not included in all the four zones. First, second, third plus archaeological waters. Archipelagic यार. हाँ, right of all these states. क्या है rights of these states? It is to include, including the like coastal states, is to freedom over flight. यहाँ पे rights of all states including coastal क्यों, क्योंकि because all have same rights and duties. Okay. So नॉफ्स है क्या, नेविगेशन ओवरफ्लाइट फिशिंग रिसर्च नॉफ्स. नॉफ हो गया. उसके बाद केबल्स एंड पाइपलाइंस है, नॉफ्स. आई सी. हम्म. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8, यू हैव 8. ड्यूटीज क्या है, यूज ऑफ हाई सी फॉर पीसफुल पर्पस. पीसफुल पर्पस के लिए होगा, कंजर्व करोगे, कोऑपरेट करोगे कंजर्व करने में, मैनेज करने में लिविंग रिसोर्सेज को. ये सब नहीं चलेगा. अनऑथराइज ब्रॉडकास्टिंग भी देख लेना, इसमें ऊपर आया था एक बार. इन्वायरमेंट को तो प्रिजर्व करोगे ही, लिविंग रिसोर्सेज को रोकोगे, और डिस्ट्रेस असिस्ट करोगे अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो. लिविंग रिसोर्सेज हो गया, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट हो गया, डिस्ट्रेस, अनऑथराइज ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. इसके बाद है हमारा नेचर ऑफ राइट्स क्या है. यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ सोवरेन राइट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, यहाँ भी सोवरेन राइट्स हैं ओवर वाटर ऑल्सो, और यहाँ पे नो सोवरेनिटी. ठीक है. कोस्टल स्टेट की क्या है, फुल कंट्रोल रहेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे. यहाँ पे भी रिसोर्स पे कंट्रोल रहेगा, लिमिटेड जुरिसडिक्शन है. ठीक है, फुल कंट्रोल नहीं है. यहाँ फुल कंट्रोल सी बेड पे है ओनली. ठीक है. और यहाँ इक्वल राइट है सभी का. ऑल फ्रीडम सब्जेक्ट टू पीसफुल यूज. ठीक है. ओके. ठीक है. फिर नेविगेशन ओवर फ्लाइट तो है ही. क्या है, नॉफ्स प्लस पिक इज इक्वल टू 8. ओके. हमारा एक्ट ये वाला है इंडिया का, तो वो देख लेना. इंडिया मस्ट सबमिट क्लेम फॉर एक्सप्लॉयटेशन बियॉन्ड दिस. इंडिया मस्ट सबमिट क्लेम टू दिस गाय. ओके. इंडिया ऑलरेडी हैज. इंडिया हैज beyond in Bay of Bengal. Now, having regard to the UN Clause 3, which came into force in 94, two predecessor UN conventions के बारे में बताना है आपको, जिन्होंने कोडिफाई किया था. तो इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि बिफोर द 20th सेंचुरी से भी पहले ले जाएंगे. लॉ वॉज बेसली बेस्ड ऑन मारे लिबरम फ्रीडम ऑफ सी एंड मारे क्लॉसम क्लोज सी क्लेम्स. इन दोनों पे बेस्ड था. किस किस पे, मारे लिबरम पे और मारे क्लॉसम पे. तो पहला इसी को जनेवा बोलते हैं, जनेवा कन्वेंशंस. इसने कोडिफाई किया था कि रूल्स
बट लेफ्ट मैनी डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व। ये फेल हो गया था टू रिजॉल्व द ब्रेथ ऑफ द सी। ठीक है, ये ब्रेथ ऑफ द सी, इसने कोडिफाई किए की रूल्स, बट लेफ्ट मैनी डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व। ठीक है, यहाँ ये तो कॉम्प्रिहेंसिव है ये, जो कि इंटेंट टू फोर्स हुआ 94 में। प्रेडिसेसर कन्वेंशन कौन कौन सी है इसकी? यूएन क्लॉज 1 2। तो यूएन क्लॉज 1 प्रोड्यूस्ड 4 ट्रीटीज। एक तो टेरिटोरियल सी और कॉन्टिगियस जोन जो सबसे पहले आ जाते हैं, फिर हाई सी सीधा, फिर फिशिंग वाला, और उसी में लिविंग रिसोर्सेज आ जाएंगी हाई सीज में ही, और एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, समझे? 1 2 3 4, और 4 में ही फिशिंग है। नहीं, फिशिंग भी है, और ये वाला यहाँ पे लिविंग रिसोर्सेज, क्योंकि फिशिंग तो आपके पास रहेगी ना कॉन्टिगियस जोन वगैरह हर जगह, इसलिए। लिमिटेशन क्या है? यूनिफॉर्म ब्रेथ नहीं हो पाई टेरिटोरियल सी की, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स नहीं हो पाया बेसिकली। 3 नॉटिकल माइल्स वर्सेस 12 नॉटिकल माइल्स, इस तरीके से पंगा रहा होगा। फिर काफ़ी लेफ्ट मैन इशूज़, जैसे ई जेड का है, डीप सी बेड का है, मेरीन इन्वायरमेंट का है, ये सब। तो नीचे का सी बेड का वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए होंगे, एक एनवायरनमेंट तब तक कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी, और ई जेड तो तब तक था ही नहीं। सेकंड वाले पे अगर आए तो इसने कोशिश तो की, बट फिर से ब्रेथ नहीं कर पाया ये, इसलिए अब हम आएंगे तीसरे लौंडे पे अपने। तीसरा लौंडा अपना कॉम्प्रिहेंसिव एकदम कोडिफिकेशन कर चुका है, जिसमें आर्टिकल 320 है, 9 एनेक्सेस है। कोडिफाई किया, डेवलप किया मैनी रूल्स ऑलरेडी, जो ऑलरेडी थे, ठीक है, कस्टमरी लॉ में, और इसने नए नए भी इंट्रोड्यूस किए। तो जो ऑलरेडी थे और न्यू दोनों को इसने कोडिफाई किया, डेवलप किया है। फिर हम आ जाएंगे प्रोविजंस पे। प्रोविजंस में आएंगे तो सबसे पहला आएगा बेस लाइन का, जो कि 5 से 14 तक रहता है। इसने कस्टमरी जो मेथड था ना, उसको एग्जिस्टिंग कोडिफाई, कस्टमरी एग्जिस्टिंग मेथड, ठीक है, बेस लाइन का। फिर ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी 3 में आ गई, 12 को फिक्स कर दिया। एमर्जिंग स्टेट प्रैक्टिस, ओके कूल। फिर उसके बाद है इनोसेंट पैसेज का है, कस्टमरी को फिर से इसने रीफॉर्म कर दिया। फ्रीडम ऑफ द हाई सीज ट्रेडिशनल ग्रोशियस प्रिंसिपल था, ये भी हो गया। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के राइट्स, ये कंटिन्यू किया। ट्रूमैन प्रोक्लेमेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोलॉन्गेशन, ओके, ये भी अच्छा है फिर तो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोलॉन्गेशन। तो क्या क्या इसने कौन कौन सी कस्टम को किया? अच्छा, प्रोग्रेसिव लेवल बियॉन्ड कस्टम, तो ये तो हो गया कस्टमरी में। ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये कस्टमरी वाले हैं। कस्टमरी में आपका बेस लाइन आया, फिर टेरिटोरियल सी की ब्रेथ आई, फिर आपका इनोसेंट पैसेज आया, हाई सीज में आपकी फ्रीडम आ गई, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आ गई। इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ करते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ग्रोशियस हो गया। तो बेस लाइन किसके बेसिस पे कोडिफाई कर दिया? बेस लाइन हो गया, टेरिटोरियल सी की ब्रेथ हो गई जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं हो पाई थी। उसके बाद आईपी इनोसेंट पैसेज, ठीक है, 5 हो गई ये। फिर हम 4 बता देंगे ये वाले, ई जेड जो बाद में आया है, और एक बेड, ई जेड सी बेड, ठीक है, ई जेड सी बेड। और फिर एनवायरनमेंट, और बाकी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जिसमें आया आईटी लॉस, आईसीजे, बाकी आर्बिट्रेशन, कूल। तो ये हो गए हमारे 4, ये हो गए हमारे 5। इफेक्टिव कोडिफिकेशन कैसे हुआ? आर्टिकल देखना है तो देख लो, कॉमन हेरिटेज मैनकाइंड का, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या है कोडिफिकेशन की? अचीवमेंट ब्रॉड क्लैरिटी, कोडिफिकेशन से क्लैरिटी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, वाइडली रेटिफाइड हो जाता है,
नियर यूनिफिकेशन, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रहता है, और जो कस्टमरी थे अब बाइंडिंग हो गए नॉन पार्टीज वगैरह में भी। ठीक है, यूएसए एक्सेप्ट मोस्ट प्रोविजन एज कस्टमरी ओनली। यूएसए ने खैर यूएन क्लॉज को ही नहीं माना होगा, तो ये तो क्या ही मानेगा हरामी। ठीक है, नाउ कस्टमरी एंड बाइंडिंग इवन ऑन नॉन पार्टीज। फिर लिमिटेशन है इसका। लिमिटेशन कैसे? सम मेजर पावर्स यूएसए नॉट पार्टी टू 1982 यूएन क्लॉज ड्यू टू पार्ट ये 11 यार। सो लिमिटेशंस में पहला, यूएसए पार्टी नहीं है, जो भी बताया था। फिर एनफोर्समेंट का चैलेंज है। ईजेड में डिस्प्यूट्स जो रहते हैं, जैसे सबसे बड़ा साउथ चाइना, तो यूएस और चाइना ही सबसे बड़े प्रॉब्लम रहती है यूएन क्लॉज के सामने। इसी आर्बिट्रेशन 2016 का देख लो, 16 का। फिर न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे पायरेसी रिसर्जेंस है, IUU है, ठीक है वो, यही ओवर फिशिंग वाला। फिर बायोडाइवर्सिटी की दिक्कत है, ये सब कवर ही नहीं किए गए, ये सब नॉट फुल्ली कवर्ड, रिक्वायर अपडेट्स। कंक्लूजन में लिख देगा कि फर्स्ट वाला जो था पार्शियल कोडिफिकेशन था, फेल हो गया, की कंटेंशन इश्यूज में। सेकंड वाला बार बार आ रहा है कि वो सक्सीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफाइंग मोस्ट ऑफ द कस्टमरी लॉ। अच्छा, थर्ड वाला है क्या? मोस्ट ऑफ द कस्टमरी लॉ, ठीक है। डेवलपिंग न्यू लीगल रिजीम्स ऑल्सो, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीज ओशंस, सही बात है। यूएन क्लॉज का इंट्रोडक्शन सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन से दे देना। ओवरऑल में कन्वेंशन हैव बीन इफेक्टिव इन द कोडिफिकेशन, बस इफेक्टिवनेस इन प्रैक्टिस, इफेक्टिवनेस कोडिफिकेशन में तो है, बट इन प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल विल एंड कंप्लायंस। सही बात। Many provisions have crystallized into customary international law. किसमें crystallize हो गए? Customary में. Binding even on the non-parties. Okay. Success of the UN clause as codification instrument. Cool. Okay. North Sea Continental Shelf 69 ICJ का recognize customary status of the continental shelf. फिर ये बेसलाइन प्रिंसिपल है नॉर्वे का 51, इंटरप्रिटेशन ऑफ EEZ अंडर यूएन क्लॉज। तो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस आएगा 69 का, उसमें रिकॉग्नाइज कर दिया कस्टमरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला राइट्स। फिर नॉर्वे फिशरीज में बेसलाइन प्रिंसिपल आया है, ये भूलना मत। नॉर्वे फिशरीज वाले में बेसलाइन आ गई, कहाँ से शुरू होगी। और बाकी साउथ चाइना ने तो PCA का ये पता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ EEZ अंडर यूएन क्लॉज, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। कूल। अगला देखते हैं 53, वेसल ऑन दी हाई सीज, इसके बाद देखेंगे अगले में।